सो हेलो गाइस, आई एम ब्लैक हैमर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आई नो ये वाली वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स भी आ गई थी एंड हमारा वीडियो अपलोडिंग जो है वो टोटली बंद कर दिया गया था। सो इट्स नॉट टू वरी नाउ, फिर से हम लोग आ गए एंड आज हम लोग बात करेंगे हैक द बॉक्स के आर्मेगेडॉन मशीन के बारे में, जो कि एक ईजी रैंक मशीन है हैक द बॉक्स पे, एंड उसका आज हम लोग वॉक थ्रू करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे हैक द बॉक्स के मशीन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन रिक्वेस्ट अ न्यू चैनल फॉर अनदर मशीन। देर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ मशीन्स, so make sure you join my discord channel, the link is in the description. So without wasting any more time, हम लोग जल्दी से वॉक थ्रू चालू कर देते हैं। सो आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वाचिंग द डार्क टेक, सो लेट्स स्टेप इनटू इट। So this is a easy rank machine on the hack the box and let's join the machine. तो जल्दी से हमने कर दी मशीन ज्वाइन एंड आई ओपन अप द टर्मिनल। या सो आई स्प्लिट इट वर्टिकली एज यूजुअल एंड मैं इसे एक बार हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर लूँगा। सो लेट्स चेक अवर IP, आई हैव कॉन्फिग एंड इट्स टनल 0। सो बेसिकली 16.14 है हमें एंड IP एड्रेस इज 233। तो एक बार पिंग कर लेते उसे। काफ़ी बार क्या होता है कि मशीन वर्किंग नहीं होता है एंड हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो इट्स पिंगिंग। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे एन मैप स्कैन के साथ, बट मैंने एन मैप ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा। सो आई विल डू अ लेस एन मैप। तो हियर यू कैन सी इट्स 10 10.233. It is the Armageddon machine and there are three ports open, two ports open. The first is the SSH and second is the Apache, that is HTTPD for 2.4.6. Now if you can check here, here is the Drupal 7 service running on that particular port. So I'll show you. Let's jump right into the Firefox and I'll just go into the http colon double slash armageddon.htb. Oh my, yeah, here it is. So it's loading. Welcome to Armageddon. And if I right click and go to the view page source, here you can see the content is Drupal 7. So we'll have a quick Google search, Drupal 7 exploit, and as soon as we go there we find the exploit DB here. Then there is a rapid 7 one, so we will go with this. We will stick to the rapid 7. Rapid 7 mostly shows the metasploit exploit that are present in the metasploit. So here it is. We just have to use that thing. uh, i'll I'll just split this horizontally and run the MSF console also. So uh, exploit Unix web apps and Drupal Gedor. So जल्दी से देखते हैं। I'll do a less nmap and OS matches में तो if you know what OS is they are running, there is Apache. So basically OS matches नहीं है तो हमें हमारा MSF चालू हो गया। हमें बस टारगेट सेट करना है एंड ओके। So I'll just do a use exploit slash Unix slash web apps slash Drupal underscore Drupalgeddon 2. So I'll do a show options. Here we can see R host and LO star required. So I'll do a set R host 10.10.10.233 and I'll do a set L host and it is 10.10.16.14. So now it's all set. We don't need to set the target URI. It is by default on slash and Drupal is by default running on the slash and our port is also 80. So we'll just exploit it. Exploit seems good. Now it's executing, it's basically checking and the target is vulnerable. So we will likely get the Meterpreter shell back.
yeah, sending the stage, and here we go, the Meterpreter session 1 opened. So basically, first thing you have to do after getting a Meterpreter session through any service, go and check the configuration files of that. So I'll do a quick Google search on Drupal 7 config file location, because क्या होता है, location, whenever the service is running, it is using the database, so we will likely get the database credential in the configuration file. So here it is, sites default settings. So I'll just jump back into it and I'll do a id. Oh, I need to use the shell for it, sorry. I'll do a shell and id. So basically, it is Apache shell. So I'll do a exit here, and basically let's check the pwd. We are in the html, so let's do ls. uh, Here is the folder called sites, so let's go into the sites that we want to explore. I'll do ls, and under sites there is a default, so let's go into default. FAULT, so autocomplete is not working here, and I'll do a quick ls. So here in the ls you can see the settings.php. So we don't need default settings. I'll just cat the settings.php, settings.php. So as we do a cat, these stars represent the comment. So जहाँ पे आपको स्टार दिखाई दे रहे स्टार्टिंग में, that means it is a comment. स्टार एंड मतलब ये देखो, ये स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इट रिप्रेजेंट्स मल्टी लाइन कमेंट, एंड हैश मतलब सिंगल लाइन कमेंट. सो हमें बिना स्टार वाला ढूंढना है, वहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो हियर इट इज़ बेसिकली द डेटाबेस एरे, and in the array we have the database username, password and the host, and driver is MySQL, so it is basically using the MySQL database. So I'll just do a nano notes here, and I'll copy and paste this up. We don't need this, so we need only 4 things. So I'll just copy and paste it over here. Now we need to connect to the MySQL, so I'll just do a shell, and I'll try to spawn a pty shell. So let's check which Python 3. There is a Python 3, yeah, there is a Python 3. I'll do a Python 3 space -c single quote import pty semicolon pty dot sp spawn slash bin slash bash, sorry, slash sh. I'll complete the double quote, the bracket and the single quote, enter. So module pty has no attribute spawn. Am I mistaking something? Pty spawn spawning a pty shells spawn. So spawn, I was just mistaking the thing, so I'll just correct it in a minute. Fuck. I'll do Python 3 -c space single quote import pty semicolon pty dot spwan spawn. Oh, I'll check the spelling again. It's spawn spawn, and I'll do it. Okay. It is pretty hard to manage. Slash bin slash sh, and I'll complete the bracket and single quote and enter. So Python 3. Oh my god. अच्छा, इधर कट करना है. सो बेसिकली MySQL को कनेक्ट करने के लिए मैं शेल को I'll use the shell to connect it, and I'll do a shell, and before we connect to the MySQL we will spawn a pty here. So for spawning the pty I'll do a python 3 -c and
single quote import pty semicolon pty dot spawn spawn spawn. Oh, I missed this dot pty dot spawn spawn, and we need to spawn the slash bin slash bash, sorry, slash sh. So we are spawning a pty shell, complete, single quote complete, and I'll do enter. So it says out of pty device, so we can't use the pty here. So basically I think we need to connect to the database directly. So if you try and connect to the database, it will not work here. I'll do which MySQL. ओके, सो SQL एग्जिस्ट हियर, बट अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करने जाओगे डेटाबेसेस को, तो हियर इज़ नॉट पीटीवाई, हमारे पास शेल नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कांट कनेक्ट टू द डेटाबेस. तो बेसिकली हमें सिंगल लाइन क्वेरी एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी. सो फॉर दैट I'll do a MySQL. MySQL space -h is host for local host, and -u for user, and we have a Drupal user, Drupal user here, and -p, and I'll mention the password. Shift C, Shift V. Now we already know the database name, that is Drupal, so I'll mention it over here, capital D, and that is Drupal, and I'll do a -e. So -e which will be used to basically execute the commands. So I'll do a -e, and single quote I'll do a show tables. So now we have the Drupal database, we need to check, and if when I do show tables, here it is, we have the tables, and the one we have used is the users. So I'll just copy this query, this one, and I'll do a Control Shift C, and I'll do a Control Shift V over here, and I'll change the query, and I'll do a DSC, description, for the table users, and I'll complete a single quote. सो जैसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉलम, दैट इज़ नेम, पास एंड लॉगिन. सो बेसिकली ये तीन हमारे काम के हो सकते हैं. सो आई विल पेस्ट द क्वेरी अगेन, एंड आई विल चेंज द क्वेरी, सिलेक्ट नेम, कॉमा, पास, कॉमा, लॉगिन फ्रॉम यूजर्स, and single quote complete. So basically we have a Bruce admin and a password hash here. So we will just copy it, Control Shift C, Control Shift V, and I'll try and crack it. So basically मैंने already उसे copy कर रखा है. I'll do a Q and I'll show you cat hash. तो लास्ट टाइम जब मैं मशीन सॉल्व कर रहा था, देयर वॉज 5 हैशेस, एंड एट दिस टाइम देर इज़ ओनली 1, बट दिस इज़ द ओनली वन वी नीड टू वर्क विथ. यही एक काम आने वाले हमारे, सो इट डजेंट मैटर्स. तो बेसिकली हमें क्या करना है, जॉन हैश एंड -w एंड वर्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू हमारे यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट एंड rocky.txt. सो बेसिकली rocky.txt हम लोग यूज़ करेंगे इसे क्रैक करने के लिए. सो आई जस्ट हिट एंटर, एंड इट टेक्स सम टाइम टू क्रैक द हैश. तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी इसे क्रैक कर रखा है, तो मैं जस्ट कंट्रोल C करूँगा यहाँ पे, एंड आई डू अ जॉन हैश स्पेस हाइपन शो. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रूस एडमिन को क्रैक कर रखा है, एंड द पासवर्ड इज बू. So we will just do a SSH into it. So I'll do a SSH bruceadmin@armageddon.htp. So I'll enter the password BOO and enter. So here we got the user access. I'll do a ls. Here it is, user.txt. I'll remove the dark.snap, that is the one which I created, and I'll cat the user.txt. So I'll copy the hash over here, and I'll just go into here and submit flag and submit. So
we got the user access. Now let's proceed further for the root. So basically, first thing I'll do is id. So we are not the part of the root, so I'll check the sudo permission. So sudo space -l. So here I can see that I can use sudo snap install. तो मैं sudo का यूज़ करके snap install कर सकता हूँ. तो basically snap क्या है? इट इज़ पैकेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस. तो इससे आप पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं स्नैप से. तो बेसिकली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो आई डू अ गूगल सर्च ऑन इट. आई क्लोज दिस अप एंड यहाँ पे हम लोग एक क्विक गूगल सर्च करेंगे स्नैप एक्सप्लॉइट. सो जैसे हम लोग सर्च करते हैं स्नैप का एक्सप्लॉइट, तो बेसिकली देयर इज़ अ डर्टी सॉक्स. तो डर्टी सॉक्स जो है वो एक एक्सप्लॉइट है लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूजिंग स्नैप डीमन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट वर्क्स विद इट. एंड जैसे ही हम मिल जाता है यहाँ पे डर्टी सॉक्स नाम का यूज़र क्रिएट हो जाता है हमारे लिए. सो वी कैन यूज़ दिस सूडो. सो बेसिकली अगर आप इसे ट्राई करने जाओगे सो इट डजेंट वर्क्स. तो ये जो स्क्रिप्ट है वो वर्क नहीं करता है. तो हमारे काम की चीज़ बस इतनी है, ये वाली द बेस 64 स्ट्रिंग. तो मैं इसे कर लूँगा कॉपी एंड इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. सो मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा पेस्ट. तो हमें पाइथन से हम इसको करेंगे डिक्रिप्ट. एंड डिक्रिप्ट करने के बाद पाइथन का यूज़ करेंगे हम लोग बेसिकली पाइथन 3 से. इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे एंड इसे हम बेस 64 में हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स को पहले डबल कोट में चेंज करना पड़ेगा. सो आई विल डू इट रियल क्विक. तो ए वाला कर देते. काफ़ी कम सिंगल कोट से, सो इट वोंट टेक मच टाइम. तो इसे हम लोग कट कर देते. इट विल बी लाइक दिस. हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे. आई विल फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो अंटिल देन. ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने चेंजेस कर लिए हैं. एंड ये रहा चेंजेस. मैंने डबल सिंगल कोट को डबल कोट्स में चेंज कर लिया एंड स्टार्ट के जो सिंगल कोट्स थे वो बस हटा दिए. तो बेसिकली मैं अभी इसे यहाँ पे लूँगा एंड मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ क्या आता है. सो आई जस्ट कॉपी दिस अप. ये हो गया कॉपी एंड आई डू पाइथन 3 -c एंड मैं इसे करूँगा प्रिंट. तो बेसिकली इसे हम लोग को करना है प्रिंट. एंड प्रिंट होने के बाद इसे हम लोग करेंगे डेड बेस 64 एंड ओके. सो सिंगल कोड बाकी रहेगा एंड वी विल पाइप इट इनटू द बेस 64 फॉर डिक्रिप्शन. बेस 64 -d एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ हमारा पेलोड. सो Ctrl+Shift+V एंड एंटर. सो एंड ऑफ फाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग इलिटरल. सो डबल कोट 2 बार आ गए, दैट्स द प्रॉब्लम. इसे मैं निकाल देता हूँ. ओके एंड नाउ यू कैन सी दिस यूज़र ऐड कमांड है एंड देन यूज़र मॉडिफाई एंड इट इज़ एडिंग डर्टी सॉक्स टू द सूडो ग्रुप. तो एंड हमें सूडो के ऑल मिल जा रहे हैं. सूडोर्स में हमें फाइल एडिट हो रही है. तो बेसिकली हमें डर्टी सॉक्स विथ ऑल सूडो परमिशन ग्रांटेड मिल जाएगा. तो मैं अभी क्या करूँगा, आई डू अ पाइथन इट इज़ प्रिटी स्लो. पाइथन 3 -c. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कमांड है. आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V over here and I'll pipe it into the dark.snap. ओके सो लेट्स चेक इट ls. तो dark.snap हमारे पास आ गया है. तो बेसिकली हम लोग अभी करेंगे sudo /user/bin/snap and
install dark dot snap. ओके सो कैन नॉट फाइंड अ सिग्नेचर फॉर द डार्क. ओके हो ओके ओके, तो यहाँ पे डेव मोड मेंशन किया गया है, तो हमें इसे डेव मोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आई जस्ट मेंशन इट हियर, हाइपन हाइपन डेव मोड बाय मिस्टेक, एंड जैसे हम लोग एंटर कर देते हैं डर्टी सॉक्स इज इंस्टॉल. तो हमें क्या, तो मशीन को रीसेट कर दिया था. मशीन को रीसेट करने का रीज़न था बिकॉज द वे वी वेर यूजिंग वॉज नॉट वर्किंग. सो नाउ मैंने SSH से पहले कनेक्ट कर लिया. सो जल्दी से हम इसे कॉपी कर देते. आई डू कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट C एंड कंट्रोल शिफ्ट V. जैसे मैं डार्क डॉट स्नैप में डालता हूँ, आई डू LS एंड हियर यू कैन सी द डार्क डॉट स्नैप. तो हम करेंगे sudo स्पेस स्लैश यूज़र स्लैश शेयर स्लैश स्नैप स्पेस इंस्टॉल हाइपन हाइपन देव मोड एंड हमारे फाइल का नाम दैट इज़ डार्क डॉट स्नैप. आई डू एंटर एंड एडमिन डू. तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया. ओ सॉरी, यूज़र बिन स्नैप था. गलती से मैंने शेयर मेंशन कर दिया, माय मिस्टेक. आई डू यूज़र बिन स्नैप. सो इट इज़ रनिंग द डर्टी सॉक्स एंड नाउ इट इज़ इंस्टॉल. तो मैं जल्दी से कॉपी कर देता हूँ नेम एंड आई डू SU switch user into it and I'll add a password. So now you can see who am ID. UID is the group ID is 101. If I show you the sudo space hyphen L uh, password for dirty socks, I'll enter it and we can run all the commands on the Armageddon box with sudo. So what I'll do is sudo space I'll do a bash नो आई डू sudo स्पेस हाइपन I. तो sudo को मैंने इंटरactive मोड डाल दिया एंड वी गॉट द रूट एक्सेस हियर. सो हियर वी कैन सी देयर इज अ रूट. आई डू अ ID we are root. So let's go to the cd slash root, enter ls and there is root.txt file. So I'll do a cat root.txt, enter cat root.txt, copy the flag and let's submit it. Submit the flag. Okay, submit the flag and flag accepted. So दिस इज़ हाउ वी ओन द आर्मेगेडॉन मशीन. सो एक क्विक रिकैप आपको अगर देना चाहूँगा मैं, तो बेसिकली हमें ड्रूपाल में वल्नरेबिलिटी मिली ड्रूपाल 7 में एंड हमने वो एक्सप्लॉइट की MSF की मदद से. सो MSF में हमें एक्सप्लॉइट मिला, वी गॉट द अपाचे यूज़र एक्सेस, देन हमें MySQL के क्रेडेंशियल्स मिले फाइल्स में. तो मेक श्योर आप जब भी किसी सर्विस के थ्रू एंटर हो रहे हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल जरूर चेक करें. तो MySQL में हमें क्रेडेंशियल्स मिले, देन वी क्रैक्ड इट विथ यूजिंग द जॉन एंड द rocky.txt वर्ड लिस्ट एंड जैसे हमने क्रैक किया हमको एक यूज़र एक्सेस मिला SSH का. सो ब्रूस रियल एडमिन करके, तो हमने उसे कनेक्ट किया, देन वी फाइंड आउट कि हमारे पास स्नैप का एक्सेस कर सकते हैं हम विथ यूजिंग sudo snap इंस्टॉल कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो हमने बेसिकली स्नैप को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लॉइट ढूंढा लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए. दैट वी गॉट द डर्टी सॉक्स एंड डर्टी सॉक्स वर्किंग नहीं था, इसलिए हमने बस ये base64 स्ट्रिंग ली, उसे पाइथन में प्रिंट किया एंड उसे हमने डिक्रिप्ट किया. तो जैसे हमने डिक्रिप्ट करके उस तरह से हमने यूज़ किया उसे एंड हमें डर्टी सॉक्स का एक्सेस मिल गया. तो हमको सूडो पूरा ग्रांटेड था, सो वी सिंपली डिड द सूडो हाइपन I एंड हमें रूट एक्सेस मिल गया. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा.